बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and it's the period of English language teaching. It's the fourth video of week number 5. In this video we will cover the stuff of week number 5. Today these topics to be described, which is unit number 8 and chapter number 28, present participle. And in the language portion we will discuss about presentation. First I will give you the review of my previous lecture, that in this term we had studied about the verb. In the whole term we had studied just about the verb. We had studied verb, be verb, linking verb, infinitives and about the gerund. In this video we will study about the present participle. I will give the short review about the infinitive and gerund, that what is the infinitive and gerund. Infinitive I will give the short review of infinitive and gerund. What is infinitive? The base form of the verb with to is called the infinitive. Verb की form base form infinitive जो है to के साथ जो है वो infinitive कहलाती है. And what is the gerund? A gerund is a noun made from a verb by adding ing. एक gerund क्या है? एक noun होता है जो कि किसी भी वर्ब में जो कि वर्ब की बेस फॉर्म में ing को इंक्लूड करके नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. दैट इन्फिनेटिव इज द टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट द जेरेंड इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. व्हाट्स द यूजेस ऑफ देम? दैट आई एम मेकिंग हियर a sentence that खेलना सेहत के लिए अच्छा है. जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट जो या तो वो एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है. लेकिन समटाइम्स बाज़ औक़ात क्या होता है कि सेंटेंस में जो एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक वर्ब होता है. तो ऐसी इस सिचुएशन में उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना होता है. तो नाउन में कन्वर्ट करने के लिए या तो उसको इन्फिनेटिव बनाया जाता है या फिर उसको जेरेंड बनाया जाता है. तो इन्फिनेट बनाने के लिए उसमें टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड जेरेंड बनाने के लिए बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. वी कैन यूज देम इन सब्जेक्ट. जैसा खेलना सेहत के लिए अच्छा है. इन दिस सेंटेंस खेलना इज अ सब्जेक्ट एंड हे इज वर्ब एंड ऑल द पार्ट इज ऑब्जेक्ट. खेलना सेहत के लिए अच्छा है. वी कैन मेक दिस सेंटेंस बाय इन्फिनेटिव और जेरेंड. इस सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव में भी बना सकते हैं और जेरेंड में भी बना सकते हैं. कैसे? खेलना इज सब्जेक्ट. सो व्हाट इज द इन्फिनेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ. खेलना सेहत के लिए अच्छा. टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ. दिस इज द इन्फिनेटिव. एंड व्हाट इज द टेंस ऑफ इन जेरेंड? Playing is good for health.
Playing is good for health. It is made in gerund. Subject and it is infinitive. To play is good for health. So in the previous lecture I had taught you about the infinitive and gerund. In this video I will cover the gerund and present participle because there is a confusion for using them. First we should know about the verb. There are three forms of verb: first form, second form and the third form. The first form is called the base form and the second form is called the past tense, which is used in only past and definite tenses, and the third form is perfect participle, which is used in all perfect tenses. Now the fourth form, base form of the verb plus ing. This form is called the fourth form of the verb. ये फॉर्म जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है और इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है. दिस इज द प्रोग्रेसिव फॉर्म. दिस फॉर्म इज यूज्ड इन थ्री वेज. इस फॉर्म को तीन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है. एक तो वर्ब के तौर पे. दिस फॉर्म इज यूज्ड एज अ वर्ब विच इज यूज्ड इन हेल्पिंग ऑल कंटिन्यूस टेंसेस और ऑल perfect continuous tenses, which helping verb plus first form of the verb plus ing. This form is also used as a noun, which is used in gerund, and also this form is used in present, is used in as an adjective, which is used in present participle. ये फॉर्म जो है वो तीन तरीकों से इस्तेमाल की जाती है. या तो वो वर्ब के तौर पे यूज की जाती है या नाउन में या एडजेक्टिव के तौर पे. जब हम वर्ब के तौर पर ये फॉर्म यूज करते हैं तो इस फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है, जो कि तमाम कंटिन्यूस टेंसेज में इस्तेमाल की जाती है और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में इस्तेमाल की जाती है. और इसमें ये एक वर्ब को एक्शन, वर्ब जो है किसी भी एक्शन को शो करता है. नाउन के तौर पर जब ये फॉर्म इस्तेमाल की जाती है तो सिर्फ जेरेंड में इस्तेमाल की जाती है या फिर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल की जाती है. नाउ कम टू द पार्टिसिपल. व्हाट इज द मीन्स ऑफ पार्टिसिपल? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पार्टिसिपल? Word adjective is called participle. वर्ब एडजेक्टिव जो है वो पार्टिसिपल कहलाते हैं. जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम किसी भी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, नाउन बनाते हैं, तो या तो वो नाउन इन्फिनिटिव होगा या फिर वो जेरेंड होगा. तो जब हम इसको नाउन में कन्वर्ट करते हैं, जेरेंड को और इन्फिनिटिव को, तो उसे वर्ब नाउन कहते हैं. लेकिन जब हम किसी वर्ब को किसी एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो वर्ब एडजेक्टिव कहलाते हैं. तो पार्टिसिपल जो है वो वर्ब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. वर्ब एडजेक्टिव्स इज कॉल्ड पार्टिसिपल. पार्टिसिपल थ्री होते हैं. नंबर वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू पास्ट पार्टिसिपल, and the number third is perfect participle. Present participle, in this participle we use V1 plus ing. इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जो कि इस टर्म में आज आप पढ़ने जा रहे हैं. पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है एंड अ परफेक्ट पार्टिसिपल में having plus third form of the verb, been plus third form of the verb या फिर having been. पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज की जाती है. पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आल्सो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. In this form we will just study about the present participle.
जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एक एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को या उसकी किसी खामी को बयान करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की. तो वर्ब एडजेक्टिव मीन्स किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना, मतलब मीन्स वो नाउन की क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नाउन क्या जो है परफॉर्म कर रहा है. तो व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? दिस इज यूनिट नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 28, प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिस्क्राइब नाउन, नाउन को वजाहत करने के लिए, बाय एडिंग आईएनजी. एडिंग का आईएनजी को ऐड करके इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके. इट इज कॉल्ड वर्ब एडजेक्टिव. ये वर्ब एडजेक्टिव कहलाता है. As I told you about the adjective, that adjective is qualifies a noun or pronoun. के एक एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है. Now positions of a present participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल की पोजीशंस क्या है, मतलब मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किन किन पोजीशंस पे यूज कर सकते हैं. नंबर 1, जस्ट बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज. प्रेजेंट पार्टिसिपल को जो है वो नाउन के बाद हम जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आई एम मेकिंग सम टेंसेस टू टीच यू दैट जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन के बाद, जस्ट लाइक he shoot the running deer. In this sentence what the subject is he, deer is also noun which is used in as an object, shoot is verb. he shoot the running deer. उसने भागते हुए हिरन को शूट किया. भागते हुए हिरन मीन्स here object is noun, deer, deer is noun. So what's the qualifying of deer? उसने कैसे डियर को रनिंग शूट किया, भागते हुए डियर को. तो रनिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये डियर को क्वालिफाई कर रहा है कि वो डियर कैसा है, भागता हुआ डियर. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मॉडिफाइज बिफोर द नाउन. बिफोर द नाउन, नाउन से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा. नाउन द सेकंड, जस्ट आफ्टर द नाउन इट मॉडिफाइज. नाउन के बाद जो है ये मॉडिफाई करेगा. जस्ट लाइक कैन यू हेयर सैम सिंगिंग. क्या आप सैम को गाते हुए सुन सकते हो? दिस इज द क्वेश्चन. कैन यू हेयर सैम सिंगिंग. आफ्टर द नाउन, नाउन को मॉडिफाई करेगा. आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा जो नाउन को मॉडिफाई करेगा. और वेयर इज नाउन? दिस इज नाउन, सैम, इट्स द पर्सन नेम. यू इज सब्जेक्ट. ठीक, कैन यू हेयर सैम सिंगिंग, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो it will be used just after the noun it modifies. अगर noun के बाद कोई भी present participle ing form use हो रही है तो वो present participle होगी. Now the third position of the present participle is in the beginning of the sentence. Sentence के शुरू में, just like hearing the noise the baby woke up. शोर की आवाज सुन के बेबी उठ गया. In this sentence the present participle in the beginning of a sentence, this is the present participle hearing, which is first form of the verb plus ing. hearing the noise, शोर की आवाज सुन के the baby woke up, बेबी जाग गया. So this is the third condition to use present participle, that in the beginning of the sentence. Now the fourth condition is at the end of the sentence. We use present participle at the end of the sentence, just like we saw him swimming. We saw subject, verb and it is object. And what's the we saw him? हमने उसे देखा. What? Swimming. Swimming करते हुए. This is the present participle that after at the end of sentence. We can use present participle at the end of sentence. Now the third option is used with by and while in a sentence. by और while के साथ भी इसका यूज किया जाता है present participle का. Just like
He has ruined his lungs by smoking. उसने स्मोकिंग के जरिए अपने लंग्स को खराब किया. What's the participle in this sentence? Smoking. We use with by. We use with by present participle. He has ruined his lungs by smoking. Now the third, while. I did my work while watching TV. I did my work, मैंने अपना काम किया while watching TV. TV देखते वक्त या TV देखने के दौरान मैंने अपना काम किया. So we use present participle by and while. This is the use of present participle. Now the sixth and last one, the position of present participle used in all continuous and perfect continuous tenses. Present perfect continuous और perfect continuous के tenses में भी present participle का use किया जाता है. Just like she is reading book. Present participle is used all continuous tenses. All continuous tenses means present continuous tense, past continuous tense and future continuous tenses. We used the present participle. She is reading book. This is the tense of present continuous. And this is showing the action. This is the verb. This is the main verb of this sentence. No, it's not an adjective. And perfect continuous tense is I have been waiting for you. मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ. I have been waiting for you since morning. मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ. So this is the present participle, waiting. V1 plus ing. So here 6 positions to use present participle. Just before the noun present participle, before the noun, after the noun present participle, after the noun, in the beginning of sentence, in the beginning of the sentence, sentence के शुरू में इसका इस्तेमाल किया जाता है. Now the fourth, at the end of the sentence, at the end of the sentence. Fifth use, with the use by and while. By smoking, while watching TV. Now last, use in all continuous and perfect continuous tenses. She is reading book. I have been waiting for you since morning. Now I think you have got the positions of present participle के present participle को कहाँ कहाँ और किस किस जगह use किया जाता है. So some points you have to remember. Some parts you have to remember that it shows the which parts you have to remember that it shows the main verb of all continuous and perfect continuous tenses. ये जो है continuous तमाम continuous tenses में और perfect continuous tenses में main verb का काम करता है. Just like I have told you before that she is calling me. In this sentence she is calling me, this is the main verb. V1 plus ing, base form plus ing. She is calling me, this is the tense of present continuous. She was calling me,
This is the tense of past continuous. She will be calling me. This is the tense of future continuous. She is was calling, present continuous. She was calling, वो पुकार रही थी, past continuous. She will be calling, वो पुकार रही होगी, present future continuous. This is the tense of present continuous and perfect continuous tense. She has been calling me since morning. She has been calling me since morning. वो मुझे सुबह से बुला रही है या पुकार रही है. So this is the tense of present perfect continuous. In this tense, calling V1 plus ing, which is present participle, which is showing an action. Now the second thing you have to remember that it functions as an adjective. It functions as an adjective. ये adjective के functions के तौर पर काम करता है. Adjective means किसी भी noun या pronoun को qualify करना. Just like I saw a flying kite. I saw a flying kite. मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी. In this sentence, flying is present participle which is qualifying the noun kite. इस सेंटेंस में flying जो है वो present participle है जो कि kite को qualify कर रहे हैं कि kite कैसी है, उड़ती हुई पतंग को. ठीक है. Now the second tense, we saw a running deer. We saw a running deer. हमने एक देखा running deer भागते हुए हिरन को. In this sentence, running is present participle which is not showing an action. It is qualifying the deer, noun deer. So you have two points. You have to remember that it is used in present all continuous tenses and perfect continuous tenses, and it is functions as an adjective which is called present participle. So I think you have got the present participle. Now come to your content solution. Present participle. It has written in your content solution. This definition is. Now come to the examples: jumping, crying, singing, flying, smiling. The jumping boy means उछलता हुआ लड़का. The crying baby means रोता हुआ baby. The singing birds means गाते हुए परिंदे. The flying kite उड़ती हुई पतंग. The smiling face means मुस्कुराता हुआ चेहरा. Now come to your exercise solution. That you have there are 10 sentences by using present participle. Number 1 is the boiling water on the stove is hot. स्टोव पे जो है वो boiling water जो है वो hot है, गर्म है. I saw you holding his hand. मैंने उसे तुम्हारे हाथ पकड़े हुए देखा. नंबर 3, द क्राइंग बेबी बाउस्ट अ डॉल. रोते हुए बेबी ने एक डॉल खरीदी. नंबर 4, वी सो द फ्लाइंग काइट्स. हमने उड़ती हुई पतंगों को देखा. वॉचिंग टीवी वी फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स. टीवी देखते हुए हम सब कुछ भूल गए. आई सॉ हिम वेयरिंग सनग्लासेस. मैंने उसे सनग्लासेस पहने हुए देखा. नंबर 7, ईटिंग कैंडीज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. कैंडीज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है. नंबर 8, द मैजिशियन ब्राउच आ टॉकिंग पैरट. मैजिशियन जो है वो एक बोलता हुआ तोता लेकर आया. नंबर 9, शी वॉच्ड हिम वॉकिंग अवे. उसने उसे जाते हुए देखा. नंबर 10, चूजिंग अ कैरियर इज नॉट इजी. किसी भी एक कैरियर को चूज करना इज नॉट इजी, आसान नहीं है. Now I think you had got the present participle. Now there is a confusion in your mind that what's the difference in gerund and present participle. So now let's we discuss about the gerund and present participle because both have the similarity. What's the similarity between them? That
Present participle gerund. Both have the similarity. What's the similarity between them? That base form of the verb plus ing. Base form of the verb plus ing. Now what's the difference between them? Gerund, it is used as a noun. And present participle is used as a verb or as an एडजेक्टिव. जेरंड का इस्तेमाल जो है वो नाउन के तौर पर किया जाता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाउन एक वर्ब के तौर पर और एक एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है. आई एम मेकिंग हियर टू सम सेंटेंसेस बाय विच यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. एक वर्ब ले लेते हैं, जस्ट लाइक रन. रन मीन्स भागना या दौड़ना. आई एम मेकिंग सम सेंटेंसेस बाय run. Just like I like running. In this sentence, what's the gerund is running. It is not showing the action. It is place on object, which is noun. So it is used gerund as a place of object. gerund का इस्तेमाल जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है, जो कि आप जानते हैं कि gerund किसी भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में या सब्जेक्टिव पार्ट में या तो कोई नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. तो आई लाइक रनिंग, इट इज नाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ रन, another sentence which I have is a camel is running. A camel is running. एक कैमल जो है वो भाग रहा है. इन दिस सेंटेंस रन, रन इज मेन वर्ब, एक्शन वर्ब. सो इन दिस सेंटेंस रनिंग एज अ वर्ब. इस सेंटेंस में रनिंग जो है वो एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, विच इज शोइंग एन एक्शन. नाउ आई सॉ अ रनिंग कैमल. आई सॉ अ रनिंग कैमल, मैंने एक कैमल को भागते हुए कैमल को देखा. सो इन दिस सेंटेंस रनिंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. इस सेंटेंस में रनिंग जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, क्योंकि ये कैमल को क्वालिफाई कर रहा है कि कैमल कैसा है, रनिंग करता हुआ है. नाउ अनदर वर्ड विच आई हैव इज डांस. डांस, आई एम मेकिंग सम सेंटेंसेस दैट dancing is my hobby. In this sentence gerund is used as a noun which is used as an subject. Gerund is used as a subject which is noun. Here it is used as an object. Dancing is my hobby. It is gerund. Now present participle. She is dancing. In this sentence it is showing an action. She is dancing. So it is present participle is used as a verb. She is my dancing partner. In this sentence dancing is present participle which is used as an adjective. So I think you have got that gerund is used as a noun and present participle is used as a verb and as an adjective. I am writing here some more sentences. That jogging is good for health. Jogging is good for health. In this sentence jogging is gerund which is used as a noun in the place of subject.
Now second, I don't like jogging. In this sentence it is used in the place of object, which is gerund. Now come to the present participle. I am baking cookies. In this sentence, bake. Bake plus first form of the verb plus ing. This is showing an action. So it is the main verb of this sentence. I am baking cookies. So present participle is used as a verb. Baking is used as a verb. I like to eat baking items. I like to eat baking items. In this sentence, baking is present participle which is used as an adjective. To eat is infinitive. I like to eat baking items. मुझे baking items खाना पसंद है. So in this sentence, baking is used as an adjective, and in this sentence, baking is a main verb. So I think you have got the difference between gerund and present participle, that there is a similarity both of them, that V1 plus ing, but the gerund is used as a noun and present participle is used as a verb or as an adjective. Now I think you have got the differentiate between them. Now come to the language portion, that as you know that there are two portions of our ELT subject. The first one is our grammar portion and the second portion is our language portion. That by this portion we try to improve our communication skills through conversation, presentations, oral practice and interview based type questions. That what is the presentation? Presentation क्या है? Presentation किसे कहते हैं? Presentation is the best way for improving fluency in English. It gives you courage and confidence in front of the audience. Presentation क्या है? Presentation जो है वो अपनी इंग्लिश को, अपनी स्पीकिंग को जो है इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन जरिया है. ये आपको करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है ऑडियंस के सामने. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, बाय विच वी कैन मोर इम्प्रेसिव आर प्रेजेंटेशन, जिसके जरिए जो हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं. देयर आर सम पॉइंट्स विच आई हैव गिवन you in the solution, that starting points for the presentation speech. That the number one is, hello, this is my pleasure at being here to speak all about. यही वो पॉइंट्स, यानी कि इन पॉइंट्स की मदद से जो है आप एक प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रेसिव बना सकते हैं इन पॉइंट्स से स्टार्ट करके. सेकेंड पॉइंट इज रिटन इन योर content solution. Hello everyone, I am pleased to speak all about today's topic. So what topic you have to define, you have to put the name in your starting points. Third point is, good morning everyone, thank you so much for having me the opportunity to speak all about. There are 3 points which is given in the content solution. Now the first presentation is Defense Day. What is the Defense Day? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Defense Day क्या है, Defense Day किसे कहते हैं और ये हम क्यों मनाते हैं. पहले Defense Day के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए कि Defense Day क्यों मनाया जाता है. वी सेलिब्रेट डिफेंस डे ऑन 6 सितंबर. डिफेंस डे जो है वो हम 6 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं. वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, हम ये डे जो है सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज अ ग्रेट पाकिस्तानी फोर्स पुश्ड बैक द इंडियन आर्मी विच दे हैड अटैक द लाहौर बॉर्डर. क्योंकि एक लाहौर बॉर्डर पे जो है वो पाकिस्तानी फोर्स ने इंडियन आर्मी को जो है पुश कर दिया था, बैक कर दिया था उनको. एट द टाइम एवरीबॉडी वर इन अ डीप स्लीप, जब हर कोई जो है वो अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने जो है वो लाहौर बॉर्डर पर जो है अटैक कर दिया था. इट वॉज अ सडन अटैक इन 1965 इन अर्ली मॉर्निंग. ये सन 1965 में जो है अर्ली मॉर्निंग में सडन अटैक हुआ था, अचानक हमला किया था इंडिया ने. द ब्रेव वॉरियर राशिद मिनाज डिड नॉट स्लीप फॉर 7 days एंड नाइट. हमारे बहादुर सिपाही राशिद मिनाज जो हैं वो 7 दिन और 7 रातों तक नहीं सोए थे. दो ही कमांडर इन चीफ
गेव हिम ऑर्डर टू टेक रेस्ट, हालांकि उनके जो कमांडर चीफ थे उन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो रेस्ट कर लें। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, आई विल शेड माई लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई कंट्री, मैं अपने मुल्क के दिफा के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। ही एक्टेड अपॉन इट, उन्होंने इस पर अमल किया। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट द डिफेंस डे, इसी वजह से हम जो है वो डिफेंस डे मनाते हैं। बिकॉज पाकिस्तान हैड वॉन द वार, क्योंकि इस दिन जो है पाकिस्तान ने जंग जीती थी। बिकॉज ऑफ द मार्टायर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, इन्हीं जो है मार्टायर्स की कुर्बानी की वजह से हमने जंग जीती थी। पाकिस्तानी आर्मी शोज देयर फीलिंग, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी फीलिंग का कैसे इजहार करते हैं, बाय टेकिंग ऑफ देयर जेट्स, अपने तैयारों को उड़ा के, इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से। सो आई थिंक you have come to know that about the defense day. Now come to your content solution, defense day. Today I have a topic to talk about defense day. मेरे पास आज जो टॉपिक है वो है किस पे बातचीत करने का, डिफेंस डे पे। इट इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान एज अ डिफेंस डे, ये पाकिस्तान में 6 सितंबर को मनाया जाता है। एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ दोज, हर साल उन लोगों की याद में हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की, टू डिफेंड आवर कंट्री, अपने मुल्क को बचाने के लिए। दिस वार हैड फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये जंग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई थी। आर मिलिट्री फोर्सेज डिफेंडेड डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री सक्सेसफुली, हमारी मिलिट्री फोर्सेज ने कामयाबी से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दिफा किया। दिस वार इज आल्सो नोन एज सेकेंड कश्मीर वार, ये जंग जो है वो दूसरी कश्मीर वार के नाम से भी जानी जाती है। दिस हिस्टोरिकल इवेंट टीचेस अस हाउ वी शुड डिफेंड आवर कंट्री, ये हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो हमें सिखाता है कि हमें अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क का दिफा कैसे करना चाहिए। नाउ द सेकंड टॉपिक इज क्रिकेट मैच। एज यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द क्रिकेट मैच, एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ द क्रिकेट मैच, सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच, some points that cricket is the most popular game of the present time. Cricket has become a popular sport in many countries. The cricket was first started in Britain. cricket का जो आगाज हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। That's why Britain is called the father of cricket. इसी वजह से ब्रिटेन जो है वो क्रिकेट का फादर कहलाया माना जाता है। The first test match is इन क्रिकेट हिस्ट्री वॉज हेल्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, पहला क्रिकेट मैच जो था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था। एंड दिस मैच वॉज प्लेड ऑन 15 मार्च 1877, और ये पहला मैच जो था वो 15 मार्च सन 1877 को खेला गया था। द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी 4 years, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हर 4 साल के बाद मुनक्किद किया जाता है। इन विच ऑल टीम्स पार्टिसिपेट, जिसमें तमाम टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ कम टू योर कंटेंट सोल्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिकेट मैच। टुडे द टॉपिक इज फेवरेट ऑफ द मोस्ट, मेरे पास आज जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। इट इज़ क्रिकेट मैच, ये क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच इज़ एन आउटडोर गेम, क्रिकेट मैच जो है एक आउटडोर गेम है। मोस्टली लाइक बाय द चिल्ड्रन एंड दे ड्रीम टू बिकम अ गुड क्रिकेटर इन देयर यंग एज, जो कि ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। एंड दे ड्रीम टू बिकम, और ये बनने का भी ख्वाब देखते हैं, अ गुड क्रिकेटर, एक अच्छा खिलाड़ी, इन देयर यंग एज, अपनी यंग एज में। इट इज़ प्लेड यूजिंग अ बैट एंड अ बॉल इन द बिग ओपन फील्ड, ये एक बैट और एक बॉल के जरिए एक बड़ी ओपन फील्ड में खेला जाता है। इट इज़ प्लेड बिटवीन द 2 कॉम्पिटिटर टीम्स, और ये 2 कॉम्पिटिटर टीम के दरमियान में खेला जाता है। हैविंग 11 प्लेयर्स, जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट हॉबी, क्रिकेट मेरा एक बेहतरीन, मेरा पसंदीदा मशगला है। एंड आ फेमस स्पोर्ट टू, और ये एक मशहूर स्पोर्ट भी है। इट मेक्स मी हेल्दी, ये मुझे हेल्दी बनाता है, रखता है, फिट रखता है। एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और एक मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है। क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में खेला जाता है। मैनी पीपल आर फॉन्ड ऑफ दिस गेम, कई लोग जो हैं वो इसके गेम के शौकीन हैं। दे आल्सो वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी सेट्स, ये वो जो हैं वो टीवी सेट्स पर भी क्रिकेट मैच देखते हैं, और स्टेडियम में भी देखते हैं। आई आल्सो नेवर मिस्ड एनी क्रिकेट मैच, मैंने भी कभी भी कोई क्रिकेट मैच मिस नहीं किया है। सो देयर आर 2 प्रेजेंटेशंस, डिफेंस डे एंड द क्रिकेट मैच। नाउ come to your diary task. Number 1 diary is make 5 sentences by using present participle.
प्रेजेंट पार्टिसिपल से जो है आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. नाउ द सेकंड डायरी इज मेक अ प्रेजेंटेशन और विंटर सीजन. विंटर सीजन पे आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है. There are 2 diaries you have to do in your copy. Now I think you have got everything. So today's lecture winds up here. So if you have got any problem, so watch this video again and again. So take care and Allah Hafiz.